Morning, students. Okay, in the last class we have completed a chapter 8, that is small business and the enterprises. So in today's class we are going to start the new chapter of your business studies, that is internal trade. It is the chapter number 9, that is internal trade. Okay, so in this chapter we will study the meaning of the internal trade, the features of the internal trade, what are the different types of the trade, that is wholesale trade and the retail trade. Wholesale trade services, retail trade services, what are the goods and services tax introduction, salient feature of the GST, that is GST means goods and services tax. Types of the retail trades in which we have to study the itinerants, fixed shop retailer. In the itinerants we have to study the hawkers or the peddlers, periodic market traders, street traders, cheap jacks. Next topic is fixed shop, in which we have to study the small scale retailers, large scale retailers. In the small scale retailers we have to study general store, specialty store, street shop, second hand goods shop and the second shops. The next one is large scale retailers. In the large scale retailers we have to study the departmental stores. What is the meaning of the departmental store, what is the different features of the departmental store. Next is chain store, features of the chain store. Mail order retailing, features of the mail order retailings, meaning of the automatic vending machines. And last topic of this chapter of internal trade is Chamber of Commerce and Industry, in which we have to study the what is the meaning and the role and the functions of the Chamber of Commerce and Industry. Okay, so let's start. First of all, we should know what is the meaning. So, trade refers to the buying and selling of goods and services for earning profit. When buying and selling of goods and services takes place within the geographical limits of a country, it is known as internal trade. Internal trade is also known as home trade or inland trade. In internal trade, payment for goods and services are made and received in the country's national currency only. Within the country, goods can be sold anywhere. Manufacturer or the traders have to pay no custom or import duties, as goods are part of the domestic production and these are meant for the consumptions within the country. Okay, so as we already know that what is the trade. So trade is simply means the buying and selling of the goods and services for the earning profit. Why we do trade? We do trade for the earning profit. In the trade, what we have to do? We will buy and selling of the goods and services. Trade simply means buying and the selling of goods and services. कि different जो भी goods और services हैं उनको buy करना और sell करना for the earning more and more profit. The main aim is to earn more and more profit. When buying and selling of goods and services takes place within the geographical limits of a country, it is known as internal trade. Okay, when buying and selling of goods and services, जब हम लोग कोई भी goods को buy करते हैं, खरीदते हैं या sell करते हैं, उसको बेचते हैं, different goods and services को which is takes within the geographical limits of a country. ठीक है, वो कहाँ पे होती है? जो हमारी geographical limit है, मीन्स हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसका जो भी एक एरिया है, geographical limit है, उसके अंदर अगर हम लोग क्या करते उसके अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये geographical limit है, इसके अंदर कोई भी गुड्स का परचेज और सेलिंग क्या होती है? Internal trade. Okay, so when buying and selling of the goods and services takes place within the geographical limit of a country,
मीन्स कंट्री की जो लिमिट है, जोग्राफिकल लिमिट है, उसी के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को के साथ डील करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड. ओके, इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहते हैं क्योंकि ये अपना जो कंट्री है वो एज अ होम है, उसके अंदर होता है. इनलैंड ट्रेड मतलब जो हमारी जो इंडिया का जितना लैंड है उसके अंदर ही हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी होम ट्रेड और दी इनलैंड ट्रेड. सो इन internal trade, payment for goods and services are made and received in the country's national currency only. Okay, इंटरनल ट्रेड में जो भी अगर कोई भी गुड्स हम लोग परचेज़ करते हैं या सेलर सेल करते हैं, तो जो भी उसका पेमेंट होता है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है एज वेल एज जो पेमेंट मेड कर रहा है, जो पेड कर रहा है, वो किस में होता है, नेशनल की इंडिया की जो नेशनल करेंसी है, मींस INR, इंडियन नेशनल करेंसी जो है रूपी, इंडियन रूपी, उसी में ही होता है. अब ये नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी से महाराष्ट्र, यूपी में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं महाराष्ट्र से, ओके, मुंबई से, तो ऐसा थोड़ा है कि पेमेंट यूपी महाराष्ट्र को डॉलर में करती है या पाउंड में करती है, नहीं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्री हैं. हम लोग एक कंट्री हैं जिसमें क्या है, जो भी पेमेंट होगा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो नेशनल इंडियन नेशनल करेंसी में ही होगा, कोई फॉरेन की करेंसी में नहीं होगा. ओके, सो विद इन द कंट्री गुड्स कैन बी सोल्ड एनी वेयर. ओके, कंट्री अगर इंडिया है, अपनी कंट्री में हम लोग गुड्स को कहीं भी सोल्ड आउट कर सकते हैं. मीन्स यूपी से हम लोग, जैसे है कि कश्मीर से कन्याकुमारी पे भी सोल्ड आउट कर, अरुणाचल प्रदेश से हम लोग राजस्थान और मुंबई पे भी कर सकते हैं. तो अपनी कंट्री में गुड्स क्या है, सोल्ड कहीं भी हो सकते हैं. मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैव टू पे नो कस्टम ड्यूटीज़ और द इम्पोर्ट ड्यूटीज़. दीज आर द ड्यूटीज़ विच आर these all are the taxes. Okay, these custom duties and import duties are the taxes which are imposed on the imported goods. ठीक है, जो कंट्री में, हमारी कंट्री में, इंडिया में अगर गुड्स क्या हैं, US से आ रहे हैं, ठीक है, US से अगर आ रहे हैं तो वी हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ टैक्स. हमें क्या करना पड़ता है, कुछ टैक्स को पे करना पड़ता है. उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी. तो अगर अपनी ही कंट्री में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, परचेजिंग और सेलिंग हो रही है, तो हमें कोई भी कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी को पे नहीं करना पड़ता, एज गुड्स आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. जो भी गुड्स हैं वो किसका पार्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ही पार्ट है. हमारी कंट्री में हो रही है तो सारे गुड्स हमारी ही कंट्री का पार्ट है, इसलिए हमें कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ को पे नहीं करना पड़ता है. एंड दीज आर मेंट फॉर द कंजप्शन विद इन दी कंट्री. एंड जो भी गुड्स हैं वो क्या है, मेंट बेसिकली फॉर है कंजप्शन विद इन दी कंट्री. कंट्री के अंदर ही कंजप्शन उनका होता है. तो इंटरनल ट्रेड मीन्स सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्री. इट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. ठीक है, हमें बाहर नहीं जाना होता है, जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री है हमारी कंट्री की, उसी के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड services. Okay, now the next one is, what are the different features of the internal trade? So main feature of the internal trade is, first one is the buying and selling of goods and services takes place within a country. Second is the payment are made and received in the home currency only. There are no or very few formalities to be completed by the traders. Various local modes of transport can be used for the transfer of goods and services. Okay, so the buying and selling of goods and services takes place within the country. ठीक है, जो भी गुड्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को, दे ऑल आर टेक्स प्लेस विद इन दी कंट्री. सब कुछ कंट्री के अंदर ही होता है. अगर हमने कमोडिटी को परचेज़ करना है या कमोडिटीज़ को, डिफरेंट कमोडिटीज़ को सेल करना है, तो वो क्या होगा, इट टेक्स प्लेस विद इन दी कंट्री. ठीक है, कंट्री के अंदर ही होगा. द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन दी होम करेंसी
ओनली, ठीक है। जो भी पेमेंट होगा, जो भी पेमेंट बनना है, मेड है एंड रिसीव्ड है, जो हमें पेड करना है एज वेल एज जो हमें रिसीव करना है, वो क्या होगा, होम करेंसी में ही होगा, इंडियन रुपी में ही होगा। देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर्स, ठीक है। जो भी गुड्स ट्रेड होंगे, तो अगर हम लोग विद इन दी कंट्री काम करें तो बहुत, या तो एकदम ही फॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी, जो भी हमको पेपर से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, सेंक्शन कराना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, तो या तो एकदम ही एक भी नहीं कोई फॉर्मेलिटी होगी, या तो अगर होगी भी तो बहुत फ्यू फॉर्मेलिटीज़ होगी। वो भी फॉर्मेलिटीज़ कहाँ होगी कि जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करेंगे, मूव करेंगे, ओके। तो ये सारी क्या हैं, कुछ बहुत रेयरेस्ट फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना होता है। So various local modes of transport can be used for transfer of goods and services, okay। जो भी local modes है transportation के means बहुत जो भी local modes है, जिससे हम लोग रेलवे के थ्रू as well as रोड के थ्रू, जो भी local transportation है उन्हीं के थ्रू हम goods को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, transfer of goods and services from one place to another place. So these all are the some features of the internal trade, in which the goods are, the buying and selling of goods are takes place within a country, the payment are made in the home currency only, and there are very few formalities to be completed, and local modes can be used for the transfer of goods and services, okay। These all are the features of the internal trade. Now the next one is, what are the different types of the internal trade? Internal trade के कितने कौन से types होते हैं? So internal trade are divided into two. First one is wholesale trade and second one is retail trade, okay। First of all we should know that the market channel, ठीक है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मार्केट चैनल कैसा है, मतलब जो कैसे कोई भी कमोडिटी अगर प्रोड्यूस होती है तो कैसे मूव होती है, ठीक है। तो कैसे होगा ये, सबसे पहले मार्केट चैनल, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कमोडिटी कहाँ प्रोड्यूस होगी, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, वेट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मैन्युफैक्चरर or producer, after that it will go to the wholesaler, next one is retailer, and next one is, and the final is consumer, okay। So manufacturer और producer क्या करेगा, कमोडिटी को प्रोड्यूस कर लिया, अब वो क्या करेगा, होलसेलर कौन होते हैं, जो कोई भी गुड्स को क्या है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या है, कमोडिटी को बना दिया, अब वो क्या करता है, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई जियो का सिम लेने जा रहे हैं, क्या आपको सबको एक एक अंबानी आके बांटते हैं कि ये लीजिए सिम, ऐसा नहीं होता है ना। मैन्युफैक्चरर क्या कर दिया, उसको बना दिया, फिर वो क्या करेगा, होलसेलर को करेगा। होलसेलर कौन होते हैं, जो कोई भी गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। अब ये होलसेलर क्या करेगा, उस गुड्स को रिटेलर को सोल्ड आउट करेगा। रिटेलर्स कौन से होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल शॉप पे जाते हैं, ग्रॉसरी की, स्टेशनरी की शॉप या कोई कम्युनिकेशन की शॉप, ये सारे क्या होते हैं, रिटेलर्स। ये क्या करते हैं, रिटेलर्स होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं। अब ये रिटेलर्स का अल्टीमेट एम क्या होता है, ये गुड्स को किसको सोल्ड आउट कर देते हैं, कंज्यूमर को, ठीक है। अल्टीमेट एम यही है कि कोई भी चैनल का एंड कहाँ पे हो जाता है, कंज्यूमर क्या करता है, रिटेलर से कमोडिटी को परचेज कर लेता है, ओके। दिस इज द मार्केट चैनल। सो in the internal trade, what we have to discuss, it is of two types, that is wholesale trade and the retail trade. Internal trade can be classified into two categories, wholesale trade and the retail trade. So we will discuss retail trade in the
properly manner. Okay, so what is it? Yes, wholesale trade refers to the trade in which goods are sold in the large quantities. The person who carries on the wholesale trade is called wholesaler. Wholesaler buys the goods directly from the manufacturer in bulk and sells them small lots to the retailer. A wholesaler acts as a middleman between the manufacturer and the retailer. Okay, so whole trade refers to the trade in which goods are sold in the large quantity. ठीक है, wholesale trade क्या वो ट्रेड होते हैं जिसमें गुड्स क्या हैं, लार्ज क्वांटिटी में सोल्ड आउट होते हैं. ठीक है, लार्ज अमाउंट में. एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि जो भी गुड्स होंगे वो लार्ज क्वांटिटी में सोल्ड आउट होंगे. द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड, जो होलसेल ट्रेड करता है, कोई पर्सन होगा ना जो ये होलसेल ट्रेड कर रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, होल सेलर. ठीक है, ही और शी कॉल्ड एज होल सेलर. होलसेलर बाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, इन बल्क मीन्स लार्ज अमाउंट. बल्क मीन्स लार्ज अमाउंट. सो होलसेलर क्या करते हैं, गुड्स को बाई करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर जो कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है उनसे क्या करते हैं, परचेज करते हैं एंड सेल्स देम इनटू द स्मॉल लॉट्स. लॉट्स मीन्स वही जो लोड्स होता है, लार्ज अमाउंट, टू द रिटेलर. ठीक है, और वो रिटेलर को क्या है, स्मॉल अमाउंट में सोल्ड आउट करते हैं. परचेज कहाँ से करेगा, मैन्युफैक्चरर से करेगा, और इसको सोल्ड किसको कर देगा, रिटेलर को. A wholesaler act as a middleman between the manufacturer and retailer. Okay, manufacturer, here wholesaler, and then retailer. Okay, so wholesaler act as a middleman between the manufacturer. तो wholesaler क्या है, middleman है. मतलब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिटेलर से कांटेक्ट नहीं कर सकता, या रिटेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट यहाँ नहीं कर रहा है. वो किसके थ्रू कर रहे हैं, एक मिडलमैन के थ्रू कर रहे हैं. इट इज़ होल सेलर. ठीक है, होल सेलर के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं. सो इट इज़ द होलसेल ट्रेड. नेक्स्ट वन इज़ features of the wholesale trade. Wholesaler act as a link between the producer and retailer. As I said कि wholesaler क्या होता है, एक लिंक होता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में wholesaler act as a link. Okay, so wholesaler deals with the large quantity of goods. लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में क्या करते हैं, होलसेलर डील करते हैं. होलसेलर इज़ अ जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, जो भी होलसेलर होते हैं वो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट में ही वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल, जो क्लोथ का कर रहा है वो क्लोथ का ही करेगा, जो ग्रॉसरी का कर रहा है वो ग्रॉसरी का ही करेगा. ऐसा नहीं कि वो ग्रॉसरी का भी करेगा, क्लोथ का भी करेगा, स्टेशनरी का भी करेगा. ठीक है, जनरली ऐसा होता है. स्पेशलाइज्ड होते हैं वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, स्टेशनरी का है, फूड ग्रेन्स का है, एक्सेट्रा का है. ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड, होलसेलर इज सिंपली इट इज़ दे परचेज और दे बाई द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन द लार्ज क्वांटिटी एंड सोल्ड आउट इट टू द रिटेलर इन द स्मॉल लॉट्स. ठीक है, स्मॉल लॉट्स में वो लोग रिटेलर को सोल्ड आउट कर देते हैं. सो होलसेलर इज़ act as a middleman between the manufacturer and the retailer. Now the next is wholesaler invest large amount of capital in maintaining stock of goods. ठीक है, जो होलसेलर होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स की. गुड्स का वो स्टॉक बना लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट स्टॉक बनाने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर उनको अपने गुड्स को कुछ रखना है, जैसे जो पेरिशेबल गुड्स हैं जो ईज़िली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज रखना पड़ेगा, और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी करनी पड़ेगी. तो इसलिए क्या करते हैं होलसेलर, जो उनका जो अपना स्टॉक को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट
में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। ओके, होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर एंड जनरली डज नॉट सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। होलसेलर क्या करते हैं, गुड्स को क्या है स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को सोल्ड आउट कर देते हैं, परचेज करते हैं वो मैन्युफैक्चरर से, सोल्ड आउट कर देते हैं वो रिटेलर को, एंड जनरली डज नॉट सेल टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर को वो जनरली वो सोल्ड आउट नहीं करते हैं। बहुत रेयरली और रेयरली ऐसा होता है कि होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर से वो कांटेक्ट करे और उनको सोल्ड आउट करे। सो जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फॉर द होलसेलर इज़ लो। ठीक है, जनरली ये देखा जाता है कि जो प्रॉफिट है होलसेलर का वो लो होता है। ठीक है, वाई इट विल बी लो वी विल डिस्कस। ओके, सो होलसेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। ठीक है, ये फर्स्ट इंटरमीडियरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो गुड्स किसके पास था, मैन्युफैक्चरर के पास था, वो तो प्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले वो जो गुड्स है वो किसके पास गया, होलसेलर के पास। ठीक है, तो होलसेलर इज़ एक्ट एज अ फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। जो गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का चेन है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, उसका होलसेलर क्या है, फर्स्ट इंटरमीडियरी है। ओके, सो सर्विसेज ऑफ द होलसेलर। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर इज द होलसेलर प्रोवाइड मैनी वैल्यूएबल सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को भी एज वेल एज रिटेलर को भी। ओके, तो सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर आर first one is facilitate large scale of production and economies of scale. So economies of scale refers to the benefit of operating at a large scale. Wholesaler help the manufacturer to avail the benefits of the large scale operation as they buy goods in the large quantity. They buy in bulk, which enables the manufacturer also to produce in bulk and avail benefits of the large scale production. Okay, so facilitate large scale production means जो भी सर्विसेज होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ द ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल। जब कोई लार्ज स्केल पे वर्क कर रहा है तो क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या किस टाइप के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं economies of scale. Basically it is related to the benefits when there is when the business is operating at the large scale पे जब operate हो रहा है। Okay, so wholesaler help the manufacturer to avail the benefits of the large scale operation. So wholesaler क्या करता है, मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है to avail the benefits of the large scale operation as they buy goods in large quantity. ठीक है, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर को एक हेल्प प्रोवाइड करता है कि मैन्युफैक्चरर क्या है, लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी को क्या करे, प्रोड्यूस करे। बिकॉज जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, गुड्स को बाय करता है लार्ज अमाउंट में, इसलिए वो एक हेल्प मैन्युफैक्चरर की भी करता है कि मैन्युफैक्चरर लार्ज क्वांटिटी में वो गुड्स को प्रोड्यूस करे। दे बाय इन बल्क। ठीक है, जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स को लार्ज क्वांटिटी, बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी में उसको वो क्या करते हैं, बाय करते हैं। विच इनेबल द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो टू प्रोड्यूस इन बल्क। ये मैन्युफैक्चरर को क्या इनेबल करता है, कैपेबल बनाता है, कैपेबल करता है कि मैन्युफैक्चरर भी कमोडिटी को क्या करे, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करे एंड अवेल बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और बेनिफिट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे करने का, लार्ज स्केल पे बिजनेस को करने का बेनिफिट्स को भी वो क्या करे, गेन करे। ओके, सो इट इज़ दी फर्स्ट services which is provided by the wholesaler to the retailer. Next is help in marketing function. Wholesalers employ a sales force to reach retailers located in the far corner of the country. The salesperson of the wholesalers perform the task of persuading the retailers to display and sell the goods at the retail outlet. Okay, wholesaler क्या करता है, wholesaler employ a sales force to reach
रिटेलर्स लोकेटेड इन दी फार कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ठीक है, होलसेलर क्या करते हैं, एक एज अ एडवर्टीजमेंट टाइप भी कर देते हैं। कैसे? क्योंकि वो हर एक अपनी कमोडिटी को जो भी वो उन्होंने मैन्युफैक्चर से परचेज़ किया है उसको वो क्या है, जो बहुत फार एरिया में भी रह रहे हैं ना, कंट्री के बहुत फार कॉर्नर में, जैसे बहुत बैकवर्ड एरिया में भी रहे हैं, तो वहाँ